Good morning, students. In yesterday's video, we have seen how threshing is done in the farms. And who is helping to do it? Bullocks. So, today we are going to see the next. Now see, the grain obtained after winnowing is filled in sacks. Now you see the grains which is obtained after doing all the process, it is filled in the sacks. Now what is a sack? Sacks means in Marathi we call it as poto. In that all grains are filled up in the sacks. Proper care is taken to make sure that it will not be attacked by insects. While packing in the sacks, the proper care is taken so that the small insects should not attack that grains or other pests such as mice. Means small insects or small pests like mice, it should not attack to that grains. And rats, what do? They eat the small grains. So they are taking care of that sacks also. Why? Because sometimes the small insects, some mice and rats, they attack that grains and they start eating up that grains, or they just tear up that sacks. After putting aside some grain for the family, the remaining sacks are sent to the marketplace to be sold. So farmers, what do? They remove some grains for their family, means for their family to eat. So they remove aside some portion of that grain, and remaining portion they fill it up in the sacks and send it to market to be sold. So as you know that in our shops there is grain sacks. From where do they come? They come from this. They come from the farmers. Farmers send these sacks and it is sent in the market to be sold. When the traders there buy the grain, the farmer gets money. So instead of that grains, what do farmer get? Farmer get money for their livelihood. So when the traders means the people who buy the grains from the farmer and they sell that grains in the market. So the traders, they buy the grain from the farmers, and instead of that grains they give them the money for the crop that has grown. So they give them the money instead of that crops. Now see Arjun, what is he saying? But the bhakri is not ready yet. He is saying that whole process I know, but then also the bhakri is not ready. Mother is saying, no, of course not. Mother said, no, of course not. And the story is not finished either. Listen. So mother is saying that story is not still finished. Just listen. Now see, in this picture you can see the farmer is, what is he doing? He is filling up the sacks. Here see, he is taking it to the market to sell it out. Okay. The grain that the traders buy is sold all over the country. So here the traders take it from the farmers, the grains, and they sell it all over the country. पूरे कंट्री में वो सेल करने के लिए भेज देते हैं ग्रेन्स को. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्रंक्स. अभी ये जो इतना सारा सामान है, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? विद द ट्रक्स और गुड्स ट्रेन्स. ये सामान ऑल ओवर इंडिया भेजने के लिए ट्रक्स अवेलेबल होते हैं या फिर ट्रेन्स भी अवेलेबल होते हैं. तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर कंट्री वो किससे किया जाता है? फ्रॉम ट्रक्स और फ्रॉम द गुड्स ट्रेन्स. It is the turn of porters and truck drivers to put in their labor. Transport costs a lot too. Now it is not easy to do the transport because we have to go for the long distance. So transport is not easy. So they also cost a lot. So due to which truck drivers, it is the turn of the porters and the truck drivers to put in their labor. तो एक आदमी से ये पूरा काम नहीं होता है, बहुत सारे लोग लगते हैं इस काम के लिए. सो वो भी अपने लेबर्स की हेल्प लेते हैं एंड ट्रक्स फिल करते हैं, गुड्स ट्रेन्स फिल करते हैं और पूरे ऑल ओवर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं.
Now the sacks of grain reach the provision stores. Now what is the provision stores? Where we all get our daily use things. So these are the provision stores. They are nearby our house only. So now the sacks grain come to the provision store. People buy the grain from them. So what do? People go to the provision stores and they buy grain from them. They sort out any stones or rubbish to clean the grain. So if you go to the provision stores and you buy some grains from there, you will see that there are some stones or rubbish material in that grains. So you have to clean it out, you have to clear it out. They get it milled into flour. And after that, what we do? We go to the flour. Means we make a flour of it, of the grain. Now what is the meaning of flour? Milled into flour. We milled it into flour means, आपको पता है आपकी मम्मी क्या करती है? जो गेहूँ चावल रहते हैं उसे कहाँ पे लेके जाते हैं? चक्की में लेके जाते हैं और उसका आटा बनाते हैं, राइट? तो उसे बोलते हैं मिल्ड इट इनटू फ्लोर. देन वाइल कुकिंग, जब खाना बनाती है मम्मी, द फ्लोर इज नीडेड इनटू लम्स. आटा भिगोती है किससे? पानी से. अगर आपने देखा होगा तो नीडेड इनटू लम्स मीन्स आटा ऐसा भिगोना. द लम्स आर देन फ्लैटेंड इनटू अ भाकरी एंड रोस्टेड. और उसके बाद मम्मी क्या करती है? उसे फ्लैटेंड करती है, उसकी भाकरी बनाती है और उसे रोस्ट करती है गैस पे. वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू. इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? गैस का यूज़ करते हैं, स्टोव का यूज़ करते हैं. तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी स्पेंड ऑन फ्यूल. उसके लिए हमें क्या लगता है? फ्यूल. तो वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू. एंड थस एट द एंड ऑफ ऑल दिस द भाकरी अपीयर्स इन वर्षास एंड अर्जुन्स प्लेट. और इसके बाद क्या होती है? हमें क्या मिलती है? भाकरी. किसके प्लेट में? इन वर्षा एंड अर्जुन्स प्लेट. नाउ इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी व्हाट यू कैन सी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोविजन स्टोर है, मीन्स किराना जहाँ पे मिलता है हमें, वो स्टोर है. हम वहाँ से क्या करते हैं? ग्रेन्स खरीदते हैं. फिर घर पे देखो मम्मी क्लीन करती है वो पूरे ग्रेन को, जो भी रबिश मटेरियल रहता है उसे सेपरेट आउट करती है. और फिर हम उसे कहाँ पे लेके जाते हैं? चक्की में लेके जाते हैं. क्यों? पिसाने के लिए. तो हम पीसने के लिए चक्की में लेके जाते हैं. और उसके बाद हमें क्या मिलता है? वी गेट अ फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटा. एंड आफ्टर दैट मम्मी मेक्स भाकरीज आउट ऑफ इट. Now, would it be right to waste food that we get through the efforts of so many people? तो अभी ये अच्छी बात है क्या? जो फूड हम इतने मेहनत से हमें मिलता है, इतने लोगों की मेहनत से हमें मिलता है, वो उसे वेस्ट करना, इज़ इट गुड थिंग? नो. डू यू नो सिंगाड़ास एंड मखनास आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन. सिंगाड़ास और मखनास ये ऐसे फूड आइटम्स है जो ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ नहीं करते या फिर खाते नहीं हैं. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स. ये हमें किससे मिलते हैं? ओनली फ्रेश वाटर के जो प्लांट्स होते हैं उससे ही मिलते. मच वर्क हैज़ टू बी डन टू कलेक्ट, क्लीन, ड्राई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देम. इससे ही करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है. उसके लिए हमें बहुत सारा कलेक्शन करना पड़ता है, फिर क्लीनिंग, फिर ड्राइंग, फिर स्टोर और फिर ट्रांसपोर्ट. Now other foodstuffs. We get fish from water. So from where do we get fish? We get fish from the water. Fishermen work hard to catch them. Fishermen बहुत मेहनत करते हैं फिश को पकड़ने के लिए. There are people who gather and sell fruits like आमला, जामुन, करवंद, बोरो which grow in forest. अभी ये तो कॉमन नेम्स है, ये आप घर पे भी खाते हो. आमला, जामुन, करवंद, बोर, ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम फॉरेस्ट. सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म्स वाइल सम पीपल हैव ऑर्किड्स फॉर ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप्स. ओके, सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म्स. किसी किसी के घर में वेजिटेबल के फार्म्स ही होते हैं.
कोई कोई गार्डन में ग्रो करता है, कोई अपने टेरिस पे ग्रो करता है, किसी के यहाँ पे जगह होगी, ओपन स्पेस होगी तो वहाँ पे वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। ओके, कोई कोई फ्रूट्स के क्रॉप्स लगाते हैं। सम पीपल कीप पोल्ट्री, कुछ लोग पोल्ट्री रखते हैं। पोल्ट्री मीन्स जहाँ पे बहुत सारे हेंस होते हैं, तो पोल्ट्री अपने घर के यहाँ पे करते हैं। सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट, कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स रखते हैं, किसके लिए, मिल्क के लिए और मीट के लिए। ये ज़्यादा करके चीज़ें हमें गांव में दिखाई देती है। ऑल दिस पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द ओन ऑक्यूपेशंस, और ये सब चीज़ें करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। वी गेट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स, ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स as a result of their efforts, and we get such a variety of food because of their efforts. The efforts and labor of many other people are also required for storing, transporting and marketing. So the people who are doing storing, transporting and marketing means some of the people are working for transportation also, for marketing also, for the product storing also. So they also takes many efforts as well as preparing the various dishes we eat. All these process are expensive. So ये जो सब पूरा प्रोसेस है, उगाना, उसे ठीक से अच्छे से रखना, उसे क्लीन करना, उसे मार्केट लेके जाना, उसे बेचना, फिर वो प्रोविजन स्टोर्स में आना, फिर हम खरीद देंगे, वो पूरी जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन की, ये वो सब जो है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव है। Therefore, it is necessary for all of us to take care of that food is not wasted. इसलिए इतनी सब प्रोसेस होने के बाद हमें अच्छा खाना खाने को मिलता है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत नेसेसरी है कि हमें कोई भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और केयर करनी चाहिए कि जितना लगे उतना ही खाना चाहिए। सो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, क्योंकि आज हमने देखा इस लेसन में कि कितने सारी चीज़ें करने के बाद हमें खाना मिलता है। वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, हमने ये क्या पढ़ा है इस लेसन से। द फूड स्टफ्स वी यूज़ कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस सच एज फील्ड्स, लेक्स, द सी एंड द फॉरेस्ट। अभी जो भी फूड स्टफ्स हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम फील्ड्स, फ्रॉम लेक्स एंड फ्रॉम सीज एंड फ्रॉम फॉरेस्ट। सी और लेक से हमें क्या मिलते हैं, फिशेज़, जो वाटर एनिमल्स हम खाते हैं छोटे छोटे, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सी एंड लेक्स से। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड्स टिल स्टोरिंग द ग्रेन इन वेयर हाउसेज, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क आर कैरिड आउट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी फील्ड से पूरे जो ग्रेन्स है उसे लेके आना, फिर उसे स्टोर करना, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना, ये सब चीज़ें करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग आर सम ऑफ दिस टास्क। आफ्टर दैट द क्रॉप इज़ ट्रांसपोर्टेड, सोल्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ईटिंग। ये सब करने के बाद फिर क्रॉप कहाँ पे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, उन्हें बेचा जाता है, फिर उन्हें खाया जाता है, खाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन अवर प्लेट्स। इसके बाद ही हमें खाने में अच्छा खाना मिलता है प्लेट में। एज विद ग्रोइंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इन टू प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ्स टू। वी मस्ट ऑल टेक केयर टू एंश्योर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड। ओके, वी शुड टेक केयर दैट आवर फूड इज़ नॉट वेस्टेड because there are many efforts, many people are taking efforts for making this food. So always remember, we get a variety of foodstuffs through the efforts of many we get a variety of foodstuffs through the efforts of many different people. Let us always be grateful to them. इसलिए इन सब चीज़ों के पीछे जिसकी भी मेहनत है उनके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल होने चाहिए, थैंकफुल होने चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से ही हमें इतना अच्छा खाना मिलता है. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश विद दिस चैप्टर. टुमारो आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ इट. थैंक यू.